کہ مل کے حق سے لوٹنے لگے جب، حضرات توجہ چاہوں گا، کہ مل کے حق سے لوٹنے لگے جب، مل کے حق سے لوٹنے لگے جب، دی صدا حق نے محبوب میرے، دی صدا حق نے محبوب میرے، تھوڑی دیر اور رک جائیے گا، دی صدا حق نے محبوب میرے، تھوڑی دیر اور رک جائیے گا، ہم نے جی بھر کے، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، پردہ ہے ہر ایک سے خدا کو، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرات، تو جب رب العزت، جب اللہ رب الجلال کے جب جی نہیں بھرتا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، تو ہم انسانوں کا جی کیسے بھر جائے گا؟ یہ قرآن کی بات کر رہے ہو، قسم خدا کی اگر قرآن، اگر آپ غور سے سنو گے تو آپ تو قرآن کے عاشق ہو، آپ تو قرآن ماننے والے ہو، آپ تو قرآن پڑھنے والے ہو، لیکن جب میرے مصطفیٰ قرآن تلاوت فرماتے تھے، جب میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل بھی آ کر سننے لگا، ابو سفیان بھی آ کر کان لگا کر سننے لگا۔ یہ نہیں کہ منٹوں منٹوں سنے، نہیں بلکہ پوری پوری رات میرے مصطفیٰ تلاوت کرتے گئے، ابو جہل کان لگا کے سنتا گیا، میرے مصطفیٰ تلاوت کرتے گئے، والد بن مغیرہ کان لگا کر سنتا گیا، میرے مصطفیٰ تلاوت کرتے گئے، ابو سفیان کان لگا کر سنتا گیا۔ یہ دشمن بھی قرآن کو سننے سے باز دور نہیں ہٹتا۔ تو ہم تو عاشق رسول ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کے چاہنے والے ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو حضرات، یہ ایسی محفل ہے جہاں انسان کے کبھی دل نہیں بھرتا، جی نہیں بھرتا، یہ وہ محفل ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، یہ لائٹنگ آپ نے لگوائی، یہ بلب لگائے، آپ نے پنڈال بنایا، یہ بم سجائے، آپ نے یہ طرح طرح کی سجاوٹ کی ہے۔ یہ بتاؤ، آج یہ مہینہ، پورا مہینہ آپ دیکھ رہے ہو، ہر گلی نکڑ کوچے کوچے میں ہر کوئی سجاوٹ کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ نبی کے آنے کی خوشی میں کر رہا ہے، نبی کے آنے کے خوشی میں لائٹنگ کروا رہا ہے، نبی کے آنے کے خوشی میں گلیوں کو سجا رہا ہے، نبی کے آنے کے خوشی میں کوئی پنڈال بنا رہا ہے، نبی کے آنے کے خوشی میں کوئی کھچڑا کھلا رہا ہے، نبی کے آنے کے خوشی میں کوئی شربت پلا رہا ہے۔ یہ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی عمادہ ایسی ہے کہ نبی کے آنے کی خوشی میں وہ ظہور کر رہا ہے، وہ ظہار کر رہا ہے کہ نبی کی چاہت کیا ہوتی ہے، نبی کی چاہت کیسی ہوتی ہے۔ اسی چاہت کو اظہار کرنے کے لیے ہر کوئی انسان اس میں لگا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ دشمن رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ شرک بدعت فتویٰ لگاتے جا رہا ہے۔ معزز، جب اللہ کسی سے، جب اللہ، آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ نے مہر لگا دی وہ انسان کبھی نہیں سدھرے گا، کیونکہ ایسے ایسے عالم ہے جو آپ یہ سمجھ رہے ہوگے، ارے ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ کتنے بڑے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، کتنی لمبی داڑھی ہے، کتنی لمبی ٹوپی ہے اور کرتا پجامہ ہے، یہ عالم ہے اور یہ شرک بدعت کا فتویٰ لگا رہے
हैं, यकीनन इन्होंने भी हदीस पढ़ी होगी, यकीनन इन्होंने भी कुरान पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े मुअल्लिम है, बहुत बड़े अध्यापक है। ये गलत नहीं कह सकते, कोई आलिम गलत नहीं हो सकता, कोई मौलाना गलत नहीं हो सकता, कोई मदरसे में पढ़ाने वाला गलत नहीं हो सकता। आप यही सोचेंगे क्योंकि आप आवाम है, आप आम है, लेकिन कुरान कह रहा है वो गलत हो सकता है, बल्कि गलत ही नहीं, उसके गले में लानत का तौक भी होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, जब फरिश्तों से रब ने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, जब रब ने मलाइका से फरमाया, फरिश्तों फस से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ। अब वो दूसरा कहता मैं नहीं मानने वाला। बोले क्यों नहीं मानोगे? बनाने वाला मैं अल्लाह। बोले मैं नहीं मानने वाला। बोले क्यों नहीं मानने वाले हो? तुम तो अध्यापक हो, तुम तो शिक्षक हो, तुम तो मुअल्लिम हो, तुम तो सारे फरिश्तों को दर्स देते हो, तुम तो सारे मलाइका के मास्टर हो, तुम तो सबको दर्स देते हो, मुअल्लिमुल अध्यापक, तुम तो जन्नती थे, जन्नत के झूले में झूलते हो, जन्नती मेवा खाते हो और जन्नत के झूले में टांग फैलाकर झूल रहे हो, ये अचानक क्या हो गया है? तो वो कहता मैं नहीं मानने वाला। बोले क्यों? आखिर वजह क्या है? तूने 6 करोड़ बस तूने मेरी इबादत की, बेशुमार सजदे किए, लेकिन क्यों इनकार कर रहा है? बोले कि मैं इसलिए इनकार कर रहा हूं कि अना खैरुम मिनहुम, आई एम बेटर देन आदम, मैं आदम से बेहतर हूं। मैं मास्टर हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं मुअल्लिम हूं, मैं बहुत बड़े आलिम हूं। मैं ये मिट्टी के बनाए हुए, ये मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से बने हैं, तो इससे मैं बेहतर हूं कि मैं आग से बना। अब बात मिला लीजिए। अब ये कह रहे हैं ये शैतान बोल रहा है, ये शैतान नहीं था, ये फरिश्तों का सरदार था, ये फरिश्तों का अध्यापक था, फरिश्तों को दर्स दिया करता था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था। हम जैसे आप बयान कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, उसी तरह हमदो सना बयान करता था। फरिश्ते सब बैठ के सुन रहे होते थे। जन्नत में बैठता था, 70,000 फरिश्ते पंखे से हवा करता था, वो कुर्सी में पैर फैला के बैठता था, जन्नती मेवा खाता था, जन्नती हर जगह घूमता था। लेकिन जब उसने इनकार किया, किससे इनकार किया? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया। जब रब ने फरमाया वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, ऐ फरिश्तों आदम का मुजस्समा तैयार हो गया है, उसको रूह डाल दी गई है, यहाँ तक कि उसमें नूर मोहम्मदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर भी उसमें शामिल कर दिया गया है। ऐ फरिश्तों ताज़ीम के लिए सजदा करो, साजिम के लिए ताज़ीम के लिए सजदा करो। वस्जुदू फसजुदू, सबू ने सजदा किया इल्ला इब्लिस, मगर इब्लिस ने सजदा नहीं किया। तो फिर क्या मिला? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसके लानत, गले में लानत का तौक डाल दिया, उसको काफिर कहला दिया, उसको जन्नत से निकाल दिया गया, उसको जन्नत से नाम काटकर जहन्नमी लिख दिया गया और बोला कि जा निकल जा मेरी जन्नत से। तो बताओ दोस्तों, एक मुअल्लिमुल अध्यापक होकर अगर लानत का तौक उसके गले में पड़ सकता है, तो ये तो कीड़े मकोड़े वाले आलिम है, ये तो नुत्फे से बने हुए आलिम है, ये कैसे गलती नहीं कर सकते? रहने दो वो आलिम है, रहने दो उसका मदरसा है, रहने दो उसकी दाढ़ी है, रहने दो उसकी लंबी टोपी है, रहने दो उसका कुर्ता पैजामा है, रहने दो उसकी नाम और शोहरत, कितनी नाम शोहरत है, रहने दो। लेकिन जब गुस्ताखे नबी निकल आए, जब उसकी जुबान से नबी की गुस्ताखाना कोई लफ्ज निकल कर आए, तो उसकी जुबान को काट दो, उसकी लानत का तौक पहना दो। हजरात अब देखो, उसने कहा कि मिट्टी से बने हैं और आज का उसका शागिर्द आलिम कहते हैं कि मिट्टी में मिले हैं। कैसा जुलूस, ये कैसा खुशी है। जो नबी नाउज़ुबिल्लाह, जो नबी मरकर मिट्टी में, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए सुनने से पहले, जो मिट्टी में मिले हैं वो बोला मिट्टी से बने हैं। और ये चेले बोल रहे हैं, चेले हर वक्त देखना कि चेला गुरु से, उस्ताद से 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे हरगिज नहीं बढ़ सकता। आपने पतंग उड़ाई होगी, पतंग
पतंग जब उड़ता है तो पतंग के नीचे एक दुम, कागज का बच्चे दुम लगा देते हैं। वो दुम से मुराद उस पतंग का शिष्य है। वो दुम सोचता है कि पतंग के साथ साथ तो उड़ रहा हूं, काश के मैं पतंग के ऊपर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कभी भी नहीं, क्योंकि वो पतंग के नीचे है। पतंग के सहारे वो उड़ रहा है। तू भी गुरु के सहारे सीख रहा है, गुरु से आगे कैसे बढ़ सकता है? पतंग के सहारे तो तू उड़ रहा है दुम लगाकर, लेकिन तू पतंग के आगे कैसे उड़ सकता है? अगर पतंग तुझे छोड़ दे तो सीधे तेरी इतनी ताकत नहीं कि तू खुद ब खुद उड़ जाए। तो हजरात, तो वो बोले मिट्टी से बने हैं और ये चेले बोल रहे हैं मिट्टी में मिले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और उसका जवाब आप जहन नशी करके गौर से बता दीजिएगा। आप कह रहे हो, सोच रहे हो, देख रहे हो कि ये मौलाना माटपाड़ा का है, ये मौलाना है जो तकरीर कर रहे हैं, मौलाना है। मुझे देखकर मेरा नाम, मेरी सारी खासियत आप बयान करोगे कि ये मर्द है, औरत नहीं है, ये मर्द है और ये मौलाना अतीकुर रहमान है जो बयान कर रहे हैं। डायरेक्ट आप कहोगे कि ये मर्द है। अब अगर मैं यहां ना रहूं और मेरी टोपी अगर यहां रहे तो आप इसको क्या कहोगे? मर्द कहोगे? मर्द नहीं कहोगे? या मौलाना अतीकुर रहमान कहोगे कि ये मौलाना अतीकुर रहमान है? नहीं कहोगे। अगर मैं इसको रख दूं फिर भी नहीं, अगर मैं इसको रख दूं फिर भी नहीं। मेरे जिस्म के अंदर जितने भी कपड़े हैं, आशियां हैं, अगर मैं साइड में रख दूं और बताऊं ये कौन है, बताओ, क्या आप कहोगे कि मौलाना अतीकुर रहमान है? नहीं। चलो ठीक है, मान लिया ये तो अज़ाए जिस्म है, ये जिस्म का अज़ा। अगर इसको छोड़कर हाथ को काट के रख दूं तो क्या कहोगे कि ये मौलाना अतीकुर रहमान है? नहीं, कहोगे ये कटे हुए हाथ है। अगर पैर रख दूं तो भी कहोगे ये पैर है। पूरा मर्द मुकम्मल कंप्लीट मर्द तभी होता है जब हाथ भी सलामत हो, पैर भी सलामत हो, सीना भी सलामत हो, चेहरा भी सलामत हो और आप देखने के बाद कहो कि ये अतीकुर रहमान मर्द है। आप बताओ मैं कहां ले जाना चाहता हूं, जरा आहिस्ते आहिस्ते चलो, सोच समझ कर चलो, हड़बड़ी मत करना, जहन को कहीं इधर उधर ना ले जाना। कहीं मैं कह दूं कि सूद हराम है तो आप समझ लो कि दूध हराम कह के चले गए। पूरी बात सुनो, फिर सुनने के बाद जहन को इधर उधर ले जाना। मैंने आपको समझा दिया कि पूरे जिस्म को जब मुकम्मल कंप्लीट आपके सामने हाजिर करूं, पेश करूं, तो आप कहोगे कि मर्द हो। अगर आज़ा को काट काट के अलग कर दूं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये मर्द है, बल्कि आज़ा है। हाथ काट के रख दिया तो हाथ कह दिया, पैर काट के रख दिया तो पैर कह दिया, अगर सिर काट के रख दिया तो सिर कह दिया। लेकिन पूरे तनों को, पूरे आज़ा को जब एक साथ मुकम्मल कंप्लीट करके आपको दिखाया तो आपने कहा कि ये मर्द है। मर्द उसी को कहा जाएगा जो मर्द मुकम्मल कंप्लीट जिस्म के साथ हो, हड्डियों के साथ हो, खून के साथ हो और सीरे के साथ हो। और मर्द उसे आप कहोगे जिसके जिस्म में हड्डी भी हो, खून भी हो और पूरे जिस्म में कलीजा भी हो, आंखें भी हो, जुबान भी हो, रूह भी हो, यानी हर चीज आपको मुकम्मल होनी चाहिए, तब आप उसको मर्द कहोगे कि हाँ ये मर्द है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बात अब यही तक आप रखिए। अब दूसरी तरफ चलिए। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह ने फरमाया, अब देखिए हदीसों से आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है, जब मर जाता है, ये मत समझना कि मर गया, बल्कि कोई भी नहीं मरता, मौत का जायका लेता है, दुनिया बदलता है। आलम अरवाह से चलकर आया था, मैं आलम अरवाह से चलकर आया हूँ। माँ की गोद की दुनिया में, माँ के पेट के दुनिया में था। 1 से 9 महीना रहने के बाद फिर रब ने फरमाया दुनिया बदलो, फिर मैं वहां